आज हम लोग क्लास 12th का मैथ का सारा फॉर्मूला देखेंगे। पहले ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। tan a plus b plus c is equal to tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b into tan c by 1 minus tan a into tan b minus tan b into tan c minus tan c into tan a। sin a minus b is equal to होता है sin a into cos b minus cos a into sin b। cos a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b। tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। cot a minus b is equal to cot a into cot b plus 1 by cot b minus cot a। अगला है दूसरे टाइप का फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। cot पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1। tan pi by 4 minus theta is equal to 1 minus tan theta by 1 plus tan theta। cot pi by 4 minus theta is equal to cot theta plus 1 by cot theta minus 1। sin a plus b into sin a minus b is equal to sin square a minus sin square b या फिर cos square b minus cos square a। cos a plus b into cos a minus b is equal to cos square a minus sin square b is और या फिर cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या फिर 2 कॉट थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta। 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta बटा 2। 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta। 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta बटा 2। tan 2 theta is equal to 2 tan theta by 1 minus tan square theta। tan theta is equal to 2 tan theta बटा 2 by 1 minus tan square theta बटा 2। cot 2 theta is equal to cot square theta minus 1 by 2 cot theta। cot theta is equal to cot square theta बटा 2 minus 1 by 2 cot theta बटा 2। sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin q theta। cos 3 theta is equal to 4 cos q theta minus 3 cos theta। tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan q theta by 1 minus 3 tan square theta। 2 sin a into cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। 2 cos a into sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b। 2 cos a into cos b is equal to cos a minus b plus cos a plus b। 2 sin a into sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b। sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into c minus d by 2। cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। tan c plus tan d is equal to sin c plus d by cos c into cos d। tan c minus tan d is equal to sin c minus d by cos c into cos d। cot c plus cot d is equal to
साइन सी प्लस डी बाई साइन सी इंटू साइन डी, कॉट सी माइनस कॉट डी इज इक्वल टू साइन डी माइनस सी बाई साइन सी इंटू साइन डी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है कि एक्स का मान -1 के से बड़ा या बराबर होगा या एक से छोटा और उसके बराबर होगा। इसका रेंज है -π/2 के से बड़ा या बराबर से +π/2 से छोटा और बराबर। कॉस इनवर्स एक्स इसका डोमेन होगा कि एक्स का मान -1 से बड़ा या बराबर और एक से छोटा या उसके बराबर होगा। इसका रेंज है बाई का मान 0 से बड़ा या बराबर या फिर से लेके पाई तक। tan इनवर्स एक्स का डोमेन होगा इसका मान -∞ से बड़ा और +∞ से छोटा होगा। इसका रेंज है -π/2 से लेकर के π/2 तक। कॉट इनवर्स एक्स इसका डोमेन है भी वही है -∞ से लेकर के +∞ तक। इसका रेंज है 0 से बड़ा तथा पाई से छोटा। सेक इनवर्स एक्स इसका डोमेन होगा कि एक्स का मान -1 से छोटा और या फिर इसके बराबर होगा या फिर एक से बड़ा या उसके बराबर होगा। यहाँ बाई का इसका रेंज होगा 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या उसके बराबर, लेकिन बाई का मान π/2 नहीं होगा। कॉसिक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन होगा कि एक्स का मान -1 से छोटा या बराबर या फिर एक से बड़ा या उसके बराबर होगा। इसका रेंज होगा -π/2 से बड़ा या बराबर से लेकर के +π/2 से छोटा या उसके बराबर, लेकिन बाई का मान 0 नहीं होगा। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन इसके यहाँ पे रेंज दिया हुआ है कि एक्स का मान -1 से बड़ा और 1 से +1 के बीच में आएगा। tan इंटू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स इंटू tan एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स इंटू tan यहाँ पे होना चाहिए कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, लेकिन एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, इसमें भी एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू होगा माइनस tan इनवर्स एक्स, लेकिन कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू एक्स √1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू एक्स बाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर।
कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाई स्क्वायर। tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus by 1 minus x by tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus by 1 plus x into y. Cot inverse x plus cot inverse y is equal to cot inverse x by minus 1 by plus x. Cot inverse x minus cot inverse y is equal to cot inverse x by plus 1 by minus x. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई। लेकिन ऐसा तब होगा जब x इंटू बाई का मान एक से छोटा हो तब। इसका एक और मान होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई यदि x का मान 0 से बड़ा तथा बाई का मान भी 0 से बड़ा हो और x इंटू बाई का मान 1 से बड़ा हो। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होगा तब x का मान 0 से छोटा हो और बाई का मान भी 0 से छोटा हो लेकिन x इंटू बाई का मान 1 से बड़ा हो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस बाई 1 प्लस एक्स बाई यदि x इंटू बाई का मान माइनस एक्स से बड़ा हो। पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस बाई 1 प्लस एक्स बाई यदि x का मान 0 से बड़ा तथा बाई का मान 0 से छोटा हो तथा x इंटू बाई का मान माइनस 1 से छोटा। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस बाई 1 प्लस एक्स इंटू बाई ऐसे तब इसका प्रयोग तब होगा जब x का मान 0 से छोटा तथा बाई का मान 0 से बड़ा हो और x इंटू बाई का मान माइनस 1 से छोटा हो। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 by 2x। टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन के पदों में होगा टैन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ कॉस के पदों में कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। सेक इनवर्स 1 बाई 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर या फिर कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। कॉट इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। कॉसिक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसिक इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। 3 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस 3x क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर चैप्टर है मैट्रिक्स इसका पहला मतलब ट्रिक है एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा मॉडुलस ऑफ ए आई इंटू आई एन। जिसका एग्जांपल में जैसे कि ए का वैल्यू दिया हुआ है ये मैट्रिक्स ऑफ 2 3 5 7 इसका कोटि है 2 इंटू 2 क्रॉस 2। अगर ऐसा हो तो एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होगा पहले इन दोनों का गुना 2 गुना 7 14
माइनस, इन दोनों का गुना 5×3 = 15, इसका मान आएगा -1। इसका ट्रिक है एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉडुलस IN। तो एडजॉइंट ए इंटू ए, तो ये इसका एडजॉइंट ए इसका रहे ये है -1 को अगर इससे फिर यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो -1 टू 1 -1 और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा ट्रिक, यदि A इज इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स ऑफ A B C D, तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू होगा D - B - C A, मतलब कि यहाँ पलट जाएगा, यहाँ A और D का मान एक्सचेंज हो जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे A का मान दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ 2 3 5 7, तो इसका एडजॉइंट A क्या होगा, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह 7 और 7 की जगह 2 और 5 और 3 का साइन एक्सचेंज होगा, मतलब कि जो प्लस है वो माइनस में, अगर माइनस रहता तो प्लस में। दूसरा है एडजॉइंट AB, एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A। यदि अवयव A n कोटि का वर्ग अवयव है तथा मॉडुलस ऑफ A अवयव A का सारणिक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट A बराबर होगा A पे पावर n-1। दूसरा एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू होगा A पे पावर n-2 इंटू A। मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ A पे पावर n-2 का होल स्क्वायर। अरे ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट A बाई मॉडुलस ऑफ A, लेकिन A का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ए इंटू A का इनवर्स इज इक्वल टू होगा A इनवर्स A इज इक्वल टू I। मतलब कि अगर A इंटू A का इन्वर्स मतलब दिया हुआ हो तो उसका मान आई होगा। यदि डिटर्मिनांट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो डिटर्मिनांट A इन्वर्स इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनांट A का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनांट A। डिफ्रेंसिएशन पहला है d अपॉन मतलब कि x पावर n का d अपॉन dx, x के सापेक्ष में अगर डिटर्मिनेंट डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो इसका मान आएगा n इंटू एक्स पावर n-1। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x मतलब कि x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष अगर किया जाए तो उसका मान a होगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x का होगा -1/x²। डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x और dx के सापेक्ष तो इसका मान होगा 1/2√x। इसका ट्रिक है कि डिफ्रेंसिएशन अगर x बाई x पावर n का किया जाए तो उसका मान आएगा -n/x पावर n+1। साइन इनवर्स साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x का माइनस साइन x, tan x का sec²x, cot x का माइनस cos²x, sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। e पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है x के सापेक्ष में e पे पावर x ही होता है। a पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन होगा a पे पावर x इंटू log e a। log e का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x, लेकिन x का मान यहाँ हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर डिफ्रेंसिएशन है log x का 1/x, डिफ्रेंसिएशन log x इज इक्वल टू होगा log e बाई x, तो ये भी हो सकता। अगर यहाँ पे x मॉडुलस हो तब इसका मान 1/x होगा। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 - x का होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का -1/√1 - x²। tan इनवर्स x का 1/1 + x²। कॉट इनवर्स x में मतलब इसमें साइन चेंज होगा सिर्फ -1/1 + x²। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होगा
इसका अपोजिट, तो कि साइन इसको हटा दिया जाए तो 1/√, नहीं, एक्स अंडर रूट x² - 1 कॉसेक इनवर्स एक्स का इसमें मतलब कि सिर्फ साइन चेंज होगा, -1/x अंडर रूट x² - 1 मॉडुलस ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा मॉडुलस ऑफ x बाई एक्स इज इक्वल टू x बाई मॉडुलस ऑफ x। यहाँ x का मान 0 नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा कब, जब x का मान 0 से बड़ा हो, और -1 होगा जब x का मान 0 से छोटा हो। अंडर रूट x² का डिफ्रेंसिएशन होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x बाई dx। कोई भी कांस्टेंट संख्या, मतलब कि कोई भी संख्या का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, जैसे 1 2 3 4 3 सबका डिफ्रेंसिएशन 0। तो किसी का अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, उसमें अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है और फिर कोई चर है, तो फिर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फिर उस चर का डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी c/du/dx। डिफ्रेंसिएशन अगर मतलब कि दो पदों, मतलब कि दो अलग अलग चरों का अगर डिफ्रेंसिएशन को जोड़ा जाएगा तो उसको हम du/dx प्लस dv/dx, मतलब दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ लेंगे। अगर डिफ्रेंसिएशन करना u माइनस भी एक्स के सापेक्ष में, तो उसका मान आएगा du/dx माइनस dv/dx duv/dx। मतलब अगर दो का गुना हो तब उसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, तब पहले को बाहर करके दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, और फिर दूसरे को बाहर करके पहले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी u/dv/dx प्लस v/du/dx। अगर डिफ्रेंसिएशन हम दो का, देखिए दो कोई संख्या है चर जिसके भागफल को हमें अगर डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तब जो मतलब कि हर में है उसको बाहर करके अंश का डिफ्रेंसिएशन, और फिर अंश में जो है उसको बाहर करके हर का डिफ्रेंसिएशन, इसको घटा देंगे और जो नीचे दिया हुआ है मतलब हर के मान का वर्ग। du/v/w मतलब अगर किसी 3 चरों का अगर गुणनफल हो, तो सबसे पहले में दो आगे, मतलब कि आगे के दो हैं उनको गुणनफल को बाहर करके तीसरा जो बचा है उसका डिफ्रेंसिएशन, फिर पीछे के दो जो चर हैं उनको गुणनफल को, फिर मतलब जो बचा हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन, फिर v/w मतलब कि इन दोनों को गुना करके फिर u का डिफ्रेंसिएशन, और फिर इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा। यदि y इज इक्वल टू u/x⁴v/x ऐसा हो, और इसका हमें अगर y का डिफ्रेंसिएशन निकालना हो, तब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा u/x⁴v/x इंटू vx/ux इंटू u'(x) प्लस v'(x) इंटू log ux। अगला चैप्टर है इंटीग्रेशन। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट, लेकिन यहाँ n का मान -1 नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx इज इक्वल टू 2√x प्लस कांस्टेंट। इसका ट्रिक है कि अगर किसी भी ऐसा संख्या की 1/x⁴n के रूप में कोई संख्या है, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो हम उसको -1/n-1 इंटू x⁴n प्लस n-1 प्लस कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे। अगला साइन इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx इज इक्वल टू tan x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ cos² x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस कांस्टेंट।
इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log इंटू मॉडुलस ऑफ sec x प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log sin x मॉडुलस ऑफ sin x प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट, या फिर log मॉडुलस ऑफ tan x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट. अगला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x बाई लॉग a प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखिए, इसका दो फॉर्मूला है. अगर इंटीग्रेशन का हमें बनाना है u इंटू वी, मतलब कि दो चरों के गुणनफल का, देखिए u के सापेक्ष तब होगा, मतलब u को एक बाहर निकाल के दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब कि जिसे हमने बाहर किया था उसका इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, मतलब फिर इसका फिर से दोबारा इंटीग्रेशन. अरे इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट. दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ ए प्लस एक्स इन बाई ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. इसका ट्रिक है कि अगर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बाई पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो तो इसका मान आएगा ए पी प्लस बी क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए क्यू माइनस बी पी द ए क्यू माइनस बी पी बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. जैसे एग्जाम्पल है कि 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स. अगर इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है तब पहले ए पी मतलब कि इसका और इसका गुना क्या है 2 × 8 इसका उसके बाद बी क्यू
मतलब कि इसका और इसका यहाँ पे शायद 5 होगा, इसका गुना 15, फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्या है AQ, यानी कि 2 और 3 का 2 और 5 का गुणनफल 2 5 10, फिर इसका 4 और 3 का गुणनफल 12 और इन दोनों का फिर से वर्ग 4 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ क्या था AQ कितना 2 गुना 5 यानी AQ माइनस BP, तो P cos x, तो P का मान कितना था, कितना है 4 cos x प्लस Q sin x यानी कि 5 sin x प्लस कांस्टेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा